Chapter 7th, Landforms and their evolution. Before this, in geography, we have finished our chapter 6, and that was, what we call it? Remember? Try to recall this one. Geomorphic processes. This is done, and I explained every aspect, every topic in a good manner, better way. I tried to make you understand, and I hope that you also listened it, understood it. But this time CBC has cancelled 30% syllabus, so this lesson is being cancelled. It is very vast chapter as well as many important geographical aspects are there. So we are supposed to read it, but right now I will skip it, and once our syllabus is finished, we will come back one by one on all chapters, because these are the basic chapters which will be useful for you in your future life. Like you can see here, running water. This also is very important chapter. How did running water be, how it runs and how it is making the new relief. See here all this. Then erosional landforms, then depositional landforms, that is alluvial fans all there. Then various type of you can say meander growth, cut loop slopes, all these are there. Braided channels are there, groundwater, how it makes. See, these are the relief made by running water. And now about groundwater, see how all these happens here. Caves are there, depositional landforms were there, stalactites, stalagmites and pillars. Then it is about glacier. How does the glacier make new land relief? New land features are there. Then you can say cirque are there, erosional landforms में harms and serrated ridges are there. Various type of moraines, estuaries are there. Then waves and currents, what effect they have in erosional capacity or what relief they make. So there are so let's say sediment coast, cliff, terrace, caves, stage, beaches and dunes. This is about depositional landforms, means desert everything. Wind का इफेक्ट यहाँ पे दिया है, all these sand dunes. So these are there. जैसे फॉर एग्जाम्पल बर्चन्स. अब बर्चन्स पूछा आपको पेपर में, तो यू डोंट नो व्हाट इज बर्चन. सो दिस इज बर्चन. सी द शेप ऑफ बर्चन, ये क्रिसेंट मून शेप. सो दिस इज लेसन 7. वी विल डू इट लेटर ऑन, बट नाउ वी विल गो इन यूनिट 4, क्लाइमेट. चैप्टर 8, composition and structure of atmosphere. See, composition and structure of atmosphere means क्या हुआ कि जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है, यानी हमारा जो वातावरण है, जो एक लेयर है, गैसेस का लेयर है जो अर्थ को सराउंड किए रहता है, अर्थ को कवर किए रहता है, और इसकी वजह से लाइफ पॉसिबल है अर्थ पे. तो ये कैसे बना है और इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ढांचा कैसा इसका है और किस चीज़ से मिलके बना हुआ है. तो यहाँ पे लाइन से टेबल नंबर 8.1 दिया है. परमानेंट गैसेस ऑफ द एटमॉस्फेयर मिला आपको. परमानेंट गैसेस यानी नेचुरली जो गैसेस आपको मिलती है एटमॉस्फेयर में, होनी चाहिए एटमॉस्फेयर में, ये आपको यहाँ बताया गया है. जिसमें दिया है कॉन्स्टिट्यूंट फार्मूला परसेंटेज बाई वॉल्यूम. नाइट्रोजन फार्मूला क्या है, N2 कितना परसेंट है, 78.0. देखिए अब यहाँ पे उसने स्पेसिफिक देना शुरू कर दिया है. इसके पहले आप जब लोअर क्लास में थे, 5th में, 6th में, 8th में, तो आपको उसने वहाँ पे राउंड फिगर दिया कि एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन. पर यहाँ पे वो लोग अभी एक्चुअल फिगर दे रहे हैं, क्योंकि अब आप 11th में आ गए हो, तो वहाँ पे एक्चुअल दे रहे हैं. तो 78.08% होता है नाइट्रोजन. ऑक्सीजन O2 20.95. आपने क्या पढ़ा था, 21%. अब यहाँ क्लियर बता रहा है कि 20.95% होता है ऑक्सीजन. फिर आपका आगे ऑर्गन कितना है, AR 0.93%. फिर 0.036% और कम. कार्बन डाइऑक्साइड कितना है,
बहुत कम। देखो हमने पढ़ा है 0.3%, देखो यहाँ कितना है 0.036% होता है कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में। फिर आपके पास दिया है नियॉन, हीलियम, क्रिप्टो, जेनॉन, हाइड्रोजन। देखिए आप हाइड्रोजन 0.0005 पॉइंट, बहुत कम है। और टोटल जो आप जो पूरा ऐड करेंगे तो ये होता है 100। तो ये आप कंपोजिशन दिया है आपके जो गैसेस मिलती हैं एटमॉस्फेयर में। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग। यहाँ पे लिखा भी यहाँ पे, कैन ए पर्सन लिव विदाउट एयर? नॉट पॉसिबल। वी ईट फूड 2-3 times a day and drink water more frequently but we breathe every few seconds। और दिन में हम लोग 2-3 बार खाएंगे, चलता है। पानी हम लोग फ्रिक्वेंटली पिए दिन में 4-5-6 बार 10 बार तो चल जाता है। लेकिन हवा जो हमें लेनी पड़ती है हर सेकंड में लेनी पड़ती है। अगर हवा नहीं लिया, सांस नहीं लिया तो हमारा लाइफ नहीं चलेगा। कितना इम्पॉर्टेंट है एयर। देखो आप कि एयर जो है वो वाटर और फूड से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कि फूड आपने नहीं खाया, एक नॉर्मल पर्सन अगर फूड अवॉइड करता है, अगर वो उपवास करता है तो कब तक जिंदा रह पाएगा आपको पता है? ज़रा मेरा ख्याल है 2 से 3 हफ्ते जिंदा रह सकता है आदमी बिना खाए पिए। हाँ, बुरा हालत में तो रहेगा लेकिन जिंदा रह जाएगा। और पानी ना पिए तो उम्मीद है कि वो डिपेंड कौन क्लाइमेट कैसा है, फिर भी 2-3 दिन तक आदमी बिना पानी पिए, 4 दिन हफ्ता तो हो सकता है आदमी जिंदा रह जाए बिना पानी पिए। लेकिन अगर सांस नहीं लिया तो कुछ सेकंड भी जिंदा नहीं रह पाएगा। इतना इम्पोर्टेंस है एयर का। दैट इज व्हाई दे आर सेइंग कि एयर इज एसेंशियल। एयर इज एसेंशियल टू द सर्वाइवल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। Some organisms like humans may survive for some time without food and water but can't survive even a few minutes without breathing air. That's so the reason why we should understand the atmosphere in greater detail. Atmosphere is a mixture of different gases. देखो अभी पूछा what is atmosphere, पूछे आपसे what is atmosphere, तो ऐसे क्या बनेगा? Atmosphere is a mixture of different gases and it envelops the earth all around. It contains life-giving gases like oxygen for humans and animals. लाइफ गिविंग गैस, जीवन दायिनी गैस तो हिंदी में क्या बोलेंगे यार? हाँ, वायु। जीवन दायिनी वायु जो है वो देता है ह्यूमन को, एनिमल को, और साथ में देता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को। जो इम्पोर्टेंस हमारे लिए ऑक्सीजन का है वही इम्पोर्टेंस कार्बन डाइऑक्साइड का है प्लांट के लिए, क्योंकि विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड दे आर नॉट एबल टू मेक फूड, देयर ओन फूड। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड होना भी ज़रूरी है। हाँ, ज़्यादा हो जाने से नुकसान हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, लेकिन कम रहने से भी प्रॉब्लम है। देखो वैसे ही बहुत कम है वो, तुझे वो गैस कैसी गर्म गैस होती है, हॉट गैस। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है आपको पता है? साइंस पढ़ा है आपने कि CO2 क्या है? गर्म गैस है। सो द एयर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अर्थ मास एंड 99% ऑफ द टोटल मास ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कन्फाइंड टू द हाइट ऑफ 32 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। और जितना भी एयर है उसका 99% वो अर्थ के 32 किलोमीटर की ऊंचाई पे ही है। यानी मान लीजिए कि ये ज़मीन है, क्या ये ज़मीन, और फिर यहाँ से ऊपर आ रहे हैं, ऐसे 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 ऊपर जाएंगे आप। ठीक है, इसे सामने के लिए आप सामने आप नज़र आपको आ रहा है तो सीधा यहाँ से जाएंगे हम लोग ऊपर, ऐसे एकदम ऊपर, यानी सीधे 32 किलोमीटर की हाइट तक 99% गैसेस हैं। ज़्यादा नीचे ज़्यादा गैस, यानी जो एटमॉस्फेयर की जो क्या बोलते हैं ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ नहीं, डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है नीचे, ऊपर कम है। नीचे हवा ज़्यादा है, ऊपर कम है। अच्छा सुनते देखा होगा ना आपने, जब जो लोग पहाड़ पे चढ़ते हैं तो उनके पास ऑक्सीजन के सिलेंडर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ऊपर जाने पे ऑक्सीजन कम मिलता है, क्योंकि ऊपर गैस ही कम होती है, एटमॉस्फेयर का लेयर कम हो जाता है, पतला हो जाता है, और जब लेयर पतला हो जाता है तो गैसेस कम मिलेंगी। तो इसलिए उनको मजबूरी वहाँ पे ऑक्सीजन का ले जाना पड़ता है, ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाना पड़ता है। अंडरस्टूड? पर अर्थ पे जहाँ हम लोग रहते हैं सरफेस पे, यहाँ पे ज़्यादा डेंसिटी है, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन भी ज़्यादा अच्छी तरह मिलता है। सो द एयर इज कलरलेस एंड ऑर्डरलेस एंड कैन बी फेल्ट ओनली व्हेन इट ब्लोस एज विंड। एयर कैसा है? कलरलेस है, कोई कलर नहीं है, और ऑर्डरलेस मतलब क्या हुआ? ऑर्डर सुना आपने? ऑर्डर जो जज बोलता है, नहीं, यहाँ पे ओ ऑर्डर नहीं है, ये ऑर्डर है। ऑर्डर मतलब होता है गंध, महक, फ्रेगरेंस, यानी हवा में कोई भी गंध नहीं होती है, कोई महक नहीं होती है। तो आप बोलोगे सर क्या फ़ायदा, अगर हवा में कोई महक रहे तो मज़ा आ जाए।
उसमें परफ्यूम की महक आए, उसमें गुलाब की महक आए, उसमें चंपा की महक आए, उसमें चमेली की महक आए, तो ज़रा सोचो क्या हाल रहेगा आपका। मज़ा रहेगा ना? नहीं, मज़ा नहीं रहेगा, क्योंकि कोई भी महक आप सुनते रहते हैं तो वो लंबे समय में आपका फिर मन भर देता है, फिर उसका मन नहीं करता तो उससे सूंघा जाए। कोई भी गंदी महक भी आ रही तो भी उसका लंबे समय सुन आप उसको सुनना नहीं चाहेंगे। आ समझ आपको? किसी नेचर ने बनाया इसको ऑर्डरलेस, कोई महक नहीं, सिर्फ हवा, ठंडी हवा। और उसका एहसास कब होता है आपको? जब वो बहता है, जब वो ब्लो होता है तब मालूम पड़ता है कि हवा बह रही है। जब एयर बनता है, विंड, याद रहे एयर और विंड फर्क है ना। एयर क्या हुआ है? जो स्टैग्नेंट है। एयर हमेशा मौजूद कहीं जाएगा नहीं, पर जो उसकी मूवमेंट होती है तब बन जाता है विंड। गॉट इट? तो ये आपका फाइनल यहाँ पे हो गया। तो कैन यू इमेजिन व्हाट विल हैपन टू अस इन द एब्सेंस ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर? ओजोन लेयर ना रहे तो हमारे साथ क्या होगा, ये हम करेंगे नेक्स्ट टाइम। इसको आप ट्राई करना। सो दिस इज़ बीन डन हियर। ये टेबल आप बनाएंगे फेयर कॉपी में, और ये सब जो पॉइंट है ये रीड करके आना, स्ट्रक्चर देख लेना आप, ठीक है। और हम नेक्स्ट टाइम आपको इसको एक्सप्लेन करते हैं। सो विल रीड, क्योंकि ये बहुत छोटा लेसन है, जल्दी पूरा हो जाएगा, कल फाइनल हो जाएगा। ओके, टिल देन टेक केयर।